गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके बिहाइव का चौथा पाठ, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बार इसका इंग्लिश समरी बता देना आवश्यक समझता हूँ। हालांकि मैंने आपको इस कहानी का एक कार्टून वीडियो भेजा था। मुझे उम्मीद है आप लोग उस कार्टून वीडियो को देखे होंगे और काफ़ी हद तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो लेट अस स्टार्ट। द लिटिल गर्ल। एक्चुअली दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल who was afraid of her father. Her father was a quick-tempered person. He worked all day long in the office, and when he came back, he looked very angry. So this little girl was afraid of him because he would scold her several times. She thought that her father was a very cruel type of person. But it was not so. When I will teach you this story paragraph by paragraph, it will be cleared that her father loved her very much, because before going to office, he would come to her and give her a casual kiss. In reply, she also told him, "Goodbye, father." But the fact was that when her father was away from home, she felt very happy. But in the evening, when he came back in the house, she was afraid of him. Although her grandmother told her to go to her parents and talk with them, but whenever Kezia, Kezia is the little girl, whenever Kezia came to talk with her parents, she found her mother reading newspaper and father sleeping on the sofa. Therefore, she could not talk with them. Once it so happened that her grandmother told her to make a new cushion for her father because his birthday was coming next week. The grandmother told Kezia to prepare a new cushion for her father. Kezia made a very beautiful cushion for him, but she had done a mistake. She sewed the cushion, but she did not find anything to feel inside the cushion. In search of something, she went into the room of her parents. There she saw some papers were placed on the table beside the bed. Kezia did not understand what they were. She tore them into little pieces and felt them and pulled them in the cushion. The cushion was ready. But when father came back in the evening, he began to search his important papers, but he could not find
Later, it was disclosed that Kezia had torn those papers and fell them in the cushion. At this, Kezia's father became very angry and he beat her. That night, Kezia wept too much and she thought that her father was different from the other fathers of the world. But her grandmother explained her it was not so. Once it so happened that her mother fell ill seriously and she had to admit in a hospital. So grandmother also had to stay in the hospital. She told Kezia to sleep alone in her bedroom. But the fact was that Kezia was afraid of ghosts. She herself thought her father as ghost. She slept alone, but at night she dreamt horribly and then she cried. Hearing her cry, her father came to her and took her in his own bedroom. There he took Kezia in his lap and thus Kezia could sleep at night. Now Kezia had realized her mistake as she thought her father very cruel, but it was not so. Now she had come to know that her father was loving and affectionate. तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको इस इंग्लिश समरी में बताया कि केजिया जो थी एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पिता से बहुत डरती थी। उसके पिता जो थे शरीर से मोटे तगड़े थे और हालांकि वो समय समय पर उसे डांटते भी रहते थे। शायद यही कारण था कि वह उनसे डरा करती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो उसके पास आते थे, उसको किस करते थे और तब वो अपने दफ्तर जाते थे। लेकिन केजिया जो थी, जब तक उसके पिताजी घर पे रहते थे वह डरी हुई रहती थी, सहमी हुई रहती थी। एक बार हुआ ये कि उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिताजी का अगले सप्ताह जन्मदिन है और वह उनको प्रेजेंट करने के लिए एक नई कुशन तैयार कर दे। केजिया तैयार हो गई। वह कुशन को 3 तरफ से सील डाली। अब वह उसमें भरने के लिए कुछ ढूंढने लगी। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी उसे भरने के लिए कुछ नहीं मिला। तब वह अपने माता पिता के कमरे में पहुंची। वहां उसने देखा कि बेड के बगल में जो टेबल है, उस टेबल पे महत्वपूर्ण कुछ कागज रखे हुए हैं। उसे क्या पता क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। मतलब उसने देखा कि बेड के बगल में टेबल पे कुछ कागज रखे हुए थे। वह वहां गई, उन कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाली और उसे कुशन में भर दी। शाम को जब उसके पिताजी आए तो वे अपना इम्पोर्टेंट पेपर्स ढूंढने लगे। यानी ये वही पेपर्स थे जिन्हें केजिया जो है फाड़कर कुशन में भर दी थी। जब उसके पिता को पता चला कि केजिया ने उनके महत्वपूर्ण कागज को फाड़ डाला है तो वे गुस्से में आ गए
और हालांकि केजिया की पिटाई भी हुई। उस रात केजिया जो है बहुत रोई। वह अपने दादी माँ से बोली कि उसके पिता जो हैं बहुत ही दयालु हैं, जबकि संसार में दूसरे जो पिता हैं बहुत ही अच्छे हैं। उदाहरण के लिए मेलचोल फैमिली जो बगल में उनके पड़ोसी रहते थे, तो उनको भी वो देखती थी। यानी वो पिता जो थे अपने 3-4 बच्चों के साथ खूब खेलते थे, मस्ती करते थे, कितना प्यार करते थे। केजिया की दादी ने उसे बताया कि उसके पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बार होता यह है कि उसके मम्मी की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है और उसके दादी को भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और केजिया को एक रात जो है अकेले सोना पड़ता है। केजिया जो है रात में डर जाती है, चिल्लाने लगती है। उसके पिताजी उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं, वे दौड़े हुए आते हैं, उसे गोद में ले जाकर अपने बिस्तर पे सुला लेते हैं। और उस समय केजिया को आभास हो जाता है कि उसके पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारे प्यारे बच्चों कि जब आप छोटे होते हो या जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके मम्मी पापा आपको बहुत डांटे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, खेलो मत, पढ़ाई करो, ये करो, वो मत करो। और शायद इससे आपको घुटन महसूस होती होगी, आपको लगा होगा कि आपके माता पिता जो है आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हो तब आपको पता चल गया होगा कि आपके मम्मी पापा आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन क्यों दिया करते थे। उनके इंस्ट्रक्शन का ही परिणाम है कि आज आप इस स्तर तक पहुंच पाए हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो था द लिटिल गर्ल जो लेसन है, इसका हिंदी और इंग्लिश समरी था और शेष हम लोग जो है पैसेज बाय पैसेज, वर्ड बाय वर्ड कल इसको पढ़ेंगे। थैंक्स।